हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका जो पार्ट 2 आया है वो हम करने वाले हैं। उसमें चैप्टर नंबर 7 इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट। तो ये एक जो तरह से इंजन का काम कर रहा है इंडियाज़ के डेवलपमेंट में। A developed India will be one where urban and rural areas have the same infrastructure, जहाँ पर सेम होंगे, सेम रोड्स, पावर, वाटर एंड कम्युनिकेशन। ये बोला था एपीजे अब्दुल कलाम में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे हर बार होते हैं चैप्टर शुरू होने से पहले, वो हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ हैज इट transformed over the years in India? So physical infrastructure refers to all tangible systems and facilities that supports daily life and economic activities, including roads, bridges, railway, metro trains, airports, electricity, water supply, and communication network. In India, infrastructure has evolved significantly over the years. During the British period, basic roads, trade routes, and railways were mainly built for trade and transport. After independence, highways, bridges, and railway network expanded, connecting towns, cities, and villages. In modern time, metro system, airport, renewable energy projects, and high-speed trains have made infrastructure faster, more efficient, and technology driven. Next question है, how has the expansion in infrastructure affected the quality of life for individual and communities? So the expansion of infrastructure has greatly improved the quality of life for individual and communities. Good roads, bridges, and transport system enable faster travel and smooth movement of goods, helping everyone reach markets and people access schools, hospital, and workplaces, even in remote areas. Modern communication like the internet and phones allow students in distant regions to study online and citizens to use e-governance service. Infrastructure also support disaster relief, public safety and reliable access to electricity and water, making life easier and more convenient. It creates jobs and ensure quick response during emergencies, making communities more secure, comfortable and economically active. Next question है, what is the role of infrastructure in the development and economic prosperity of the nation? So infrastructure is the backbone of economic growth. Efficient transport link manufacturing centers with markets, reducing costs and promoting trade domestically and internationally. Energy efficient rails and shipping network increase productivity, while airports and ports facilitate rapid movements of goods. Infrastructure development also generate employment directly and indirectly, support tourism, strengthen national security and connects remote regions, all of which contribute to national prosperity. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इमेजिन यू वेकअप वन मॉर्निंग, तो आप एक दिन उठते हैं रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी है। बट व्हेन यू स्टेप आउटसाइड, जैसे ही आप बाहर जाते हैं, देयर आर नो रोड्स, कोई रोड नहीं है, कोई बसेज नहीं है, सब बसेज चली गई हैं। नो वंस मोबाइल फ़ोन हैज़ एनी सिग्नल, किसी मोबाइल फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं है। लाइट ऑन नहीं हो रही है, इंटरनेट चला गया है और टैप जो है सूख गई है, यानी कि पानी भी नहीं है। सो हाउ वुड यू रीच स्कूल? तो आप स्कूल कैसे जाएंगे? हाउ वुड ग्रोसरीज एंड स्टेशनरी रीच योर नियरेस्ट मार्केट एंड योर होम? तो आपके पास ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? हाउ वुड यू एक्सेस यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर? तो आप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे? दिस इज़ वट लाइफ माइट लुक लाइक विदाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारी लाइफ लगेगी। अब जैसे आप ये चीज़ें सोच सकते हैं ना, अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इस तरह की हमारी लाइफ बन जाएगी। अब ये क्या है? ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, टेंगिबल स्ट्रक्चर बिल्ड टू कीप और सिटीज़ एंड विलेज फंक्शनिंग, जो हमारी सिटीज़ और विलेज को फंक्शन करते रहता है, चलाता रहता है। अब इसके अंदर क्या आता है? इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड, ब्रिजेज, रेलवे एक्सेट्रा, यूटिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइपलाइन, कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट, टेलीफोन लाइन्स, टेलीकॉम टावर्स एक्सेट्रा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि विंड मिल, सोलर पार्क, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एक्सेट्रा एंड सोन। सो ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चेनाब रेल ब्रिज, जो जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली मेरठ का जो एक्सप्रेस वे है वो है। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स हैं। बरखा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में ये डैम है। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। सोलर पावर प्लांट है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ये रहा पूरा सोलर पैनल का है। एंड मूपांडल विंड फार्म, यहाँ पे ये विंड फार्म बनाए हुए हैं, विंड्स लगे हुए हैं। नाउ
ये सब क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सो वन ब्राइट मॉर्निंग ऋषभ पैक्ड हिज बैग, उसने जो अपना बैग पैक किया फॉर अ 2 day ट्रिप, 2 दिन की ट्रिप के लिए। कहाँ से? दिल्ली से अपने होम टाउन के लिए, तलेगांव इन नासिक महाराष्ट्र। ही स्टार्टेड ऑफ इन हिज कार, उसने अपनी गाड़ी शुरू की। जोम्ड अक्रॉस अ वाइड ब्रिज, उसके बाद ब्रिज पे गए। देन पार्क द कार एट द मेट्रो स्टेशन, और पार्क वहाँ पर जाकर जो है एक मेट्रो स्टेशन पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। ही होप्ड ऑन टू द मेट्रो टू स्किप द हैवी ट्रैफिक एंड क्विकली रीच द रेलवे स्टेशन, वो मेट्रो में गए ताकि जो है जो ट्रैफिक है उसको वो स्किप कर सके और ईजिली जो है जल्दी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए। सून ही वॉज ऑन द ट्रेन, जल्दी वो अपनी ट्रेन में ही पहुंच गए। रशिंग पास ग्रीन फील्ड्स एंड टाउन, बहुत सारे टाउन्स और जो भी जगह या फील्ड्स आ रहे थे उनको पास कर रही थी ट्रेन जल्दी जल्दी। ही कॉल्ड हिज मदर, उसने अपनी मदर के पास फ़ोन किया। एंड शेयर्ड हिज लोकेशन यूजिंग हिज स्मार्टफोन, और अपनी लोकेशन शेयर की अपने स्मार्टफोन से। अब जैसे ही वो जो है घर के पास पहुंचने वाला था, ही रोड अ बस डेट मूव थ्रू मैनी फ्लाईओवर्स, तो वो एक बस में चढ़ा जो बहुत सारे फ्लाईओवर से होते हुए गई। ही वॉज सीटेड राइट नेक्स्ट टू सतीश, वो सतीश के पास बैठा था जो कि हार्ड वर्किंग टमाटो फार्मर था फ्रॉम महाराष्ट्र से। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मंडी, वो मंडी से वापस आ रहा था आफ्टर सेलिंग हिज हार्वेस्ट, अब उनकी जो फसल काटी थी उसको बेचने के बाद। ऋषभ सो सम ऑफ द टमाटोज इन हिज बैग केप्ट राइट नेक्स्ट टू हिम, उसने देखा कि उसके बैग में कुछ टमाटोज रखे हैं। ही रिमार्क्ड, सच रेड एंड जूसी टमाटोज, कितने रेड और जूसी टमाटोज ये लग रहे हैं। सतीश टोल्ड हिम, उसने बताया दैट हिज जूसी रेड टमाटोज वर नॉट जस्ट अ गिफ्ट ऑफ सनशाइन एंड रेन, ये सिर्फ एक सनशाइन यानी कि धूप और बारिश का एक गिफ्ट नहीं है। इट वॉज पॉसिबल, अब ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज कैनाल्स जो रास्ते में उनके बनी होती कैनाल और इलेक्ट्रिक वाटर पंप लगे हैं जो हेल्प करते हैं इरिगेशन में, तो इनसे हेल्प मिली। अच्छे रोड हैं जिससे जो है ईजिली जो है टक कैरी कर सकते हैं टमाटोज़ को सिटी तक। कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं ताकि वो फ्रेश रहें। एंड जो इंटरनेट है उसने भी हेल्प की टू नो अबाउट द बेस्ट इनपुट एंड मार्केट प्राइस, की कौन सा बेस्ट इनपुट है, मार्केट प्राइस क्या, तो इन सब चीज़ों में भी उसकी हेल्प हुई जिस वजह से ये सारी चीज़ें सही हुई। They both wondered how important is the physical infrastructure which is connected like a piece of puzzle, helping safe and timely travel to people and goods। तो उन्होंने दोनों ही ये सोच रहे थे कि ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, जो एक पजल के पीस की तरह है, जो सेफ भी है और लोग जो है अपनी चीज़ों को और खुद भी सेफली और टाइमली जो है ट्रैवल कर पाते हैं। फाइनली ऋषभ जो है बस से उतरा बस स्टैंड पर, उसके बाद एक ऑटो रिक्शा में चढ़े। देन ड्रॉप्ड हिम एट हिज डोर, जिस ऑटो रिक्शा ने उसको अपने घर के दरवाजे पर उतार दिया। नाउ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन, ये बैकबोन है हमारे नेशन की। इट मेक्स लाइफ ईजियर फॉर पीपल, ये लोगों के लिए लाइफ को ईजी बनाता है, कम्युनिटीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, एंड अनेबल करता है गवर्नमेंट को ताकि वो स्मूथली काम कर पाए। फॉर इंस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि रोड, रेलवेज, एयरवेज एंड शिपिंग कनेक्ट प्लेसेस, वो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं ऑफ ओरिजन और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द नियरेस्ट मार्केट, ताकि वो नियरेस्ट मार्केट में ईजिली अपनी चीज़ों को पहुंचा पाए। इंडिया हैज़ हैड अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड रोड सिंस एंशियंट टाइम, तो इंडिया का जो है ट्रेड रूट बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जो आप सोशल साइंस में पढ़ते भी आए हैं। एंड टुडे जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है हैज़ टेकन दिस फॉरवर्ड टू बूस्ट ट्रेड, तो इस वजह से जो आज का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना उस वजह से ये जो ट्रेड है वो बहुत बूस्ट हो गई है, बहुत आगे बढ़ गई है, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर भी और बाहर भी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो सपोर्ट टूरिज्म, और जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है टूरिज्म को, कनेक्ट करता है रिमोट एरियाज़ को और हेल्प करता है एमरजेंसी के टाइम पे जैसे कि फ्लड और अर्थक्वेक। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन, अब ये स्ट्रेंथ करता है क्या, नेशनल सिक्योरिटी, जो इम्प्रूव करती है, इम्प्रूविंग एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ टेरेन, मतलब हर तरह की जगह पर जाया जा सकता है डिफेंस फोर्सेस को, तो नेशनल सिक्योरिटी भी इससे स्ट्रेंथन होती है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना है। व्हाट माइट हैपन टू सतीश एफर्ट्स इफ एनी पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज मिसिंग, अगर कोई भी पार्ट एक मिस हो जाए तो सतीश पे क्या इसका एफर्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रोड नहीं है प्रॉपर तो उसकी सब्जियां या जो भी फसल है वो क्या पता टाइम से मंडी में ना पहुंच पाए और वहीं पर ख़राब हो जाए, तो कोई भी एक चीज़ अगर ना हो तो किस तरह से इफेक्ट होगा। What happen when a new highway is built near a village? How does this impact the lives of the peoples living nearby? तो क्या उसके इम्पैक्ट होंगे। इमेजिन इफ देयर वर नो इंटरनेट और फोन सर्विस, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं है। सो हाउ वुड दिस अफेक्ट पीपल्स एबिलिटी, तो वो जो है लोगों की एबिलिटी को कैसे जो है अफेक्ट करेगा काम करने का और सीखने का। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर।
हाउ डू यू एंड योर फैमिली मेंबर कम्यूट टू नियर बाय एंड फार ऑफ प्लेसेस, कैसे जो आप लोग जाते हैं नियर बाय या दूर की जगह पर. लेट अस लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अनेबल द मोबिलिटी ऑफ पीपल्स एंड गुड, कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से किस तरह से लोग ईजिली अपने को और खुद को जो है चीज़ों को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. रोड एंड हाईवे नेटवर्क्स. डिड यू नो इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ल्ड ओनली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2024. तो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, यानी कि इतने ज़्यादा रोड वगैरह या लोगों के आने जाने के लिए सुविधा इतनी कर रखी कि इतने ज़्यादा रोड बनाए हैं ताकि सब जगह ईजिली पहुंचा जा सके. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ रोड, अलग अलग तरह के रोड हैं. लोकल रोड जो कि आपके घर के आसपास होंगे, जो जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं, फार्मर अपनी क्रॉप को कैरी करते हैं मार्केट में, एंड एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक जाती है. देन देयर आर द बिगर रोड. फिर बिगर रोड आते हैं जैसे कि स्टेट हाईवेज, जो कनेक्ट करते हैं टाउन को एंड डिस्ट्रिक्ट को, किससे, विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के साथ, अलोंग विद अदर बिगर हाईवेज, दूसरे बड़े हाईवेज के साथ. दीज आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट्स, ये स्टेट्स बनाती हैं और मेंटेन करती हैं थ्रू जो भी उनके पब्लिक वर्क के डिपार्टमेंट है उनसे. देन उसके बाद आते हैं नेशनल हाईवेज. अब नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज ये क्या है, आर लाइक सुपर फास्ट रोड, बहुत फास्ट चलने वाले रोड होते हैं जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं सिटीज़ को, किससे, स्टेट से, एंड आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको बनाते हैं. दे कनेक्टेड विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कनेक्टेड हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड पोर्ट, सो डैट गुड्स एंड पीपल कैन ट्रेवल स्मूथली, क्या कि लोग और जो भी उनके सामान है वो ईजिली वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जा सके. अब यहाँ पर जैसे दोला सादिया ब्रिज है असम का, और लिविंग रूट ब्रिज है जो कि कहाँ है, मेघालय में. ये रूट से बना हुआ ब्रिज है पूरा. नाउ एज ऑफ 2025 द लेंथ ऑफ इंडियाज नेशनल हाईवेज वॉज अराउंड 1,50,000 किलोमीटर. नेशनल हाईवे जो 44 है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, जो कि 4,112 किलोमीटर्स. इट रन्स फ्रॉम श्रीनगर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, ये श्रीनगर से नॉर्थ में श्रीनगर तक जाता है और कन्याकुमारी साउथ में कन्याकुमारी तक, इतना लंबा बना हुआ है. इन एडिशन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज एन इम्पोर्टेंट हाईवे नेटवर्क, ये भी एक जो है क्वाड्रिलेटर, जैसे आपके चतुर्भुज होते हैं क्वाड्रिलेटर होता है उसी तरह से, तो इसमें भी 4 मेजर सिटीज़ जुड़ी हुई हैं, कनेक्टिंग 4 ऑफ इंडियाज़ मेजर सिटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर. ये इंपॉर्टेंट हाईवे नेटवर्क है. हाईवेज कैन नॉट बी बिल्ट एवरीवेयर, इसको जो है आप हर कहीं पर नहीं बना सकते, स्पेशली इन डिफिकल्ट टेरेंस, जो डिफिकल्ट जगह होती है जैसे कि डेंस फॉरेस्ट हैं, वाइड रिवर बेड्स हैं एंड स्टीप माउंटेन्स है, तो वहाँ ये नहीं बन सकते. सो इन केसेस में क्या होता है, ब्रिज एंड टनल्स बनाए जाते हैं ताकि ईजिली वहाँ पर पहुँचा जा सके. फॉर इंस्टेंस द डोला सादिया ब्रिज जो अभी हमने ऊपर देखा, और द भूपेन हाजरिका सेतु, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है असम एंड अरुणाचल प्रदेश को अक्रॉस द लोहित रिवर. ये क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की. एट 9.15 किलोमीटर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया. अब ये इतना लंबा है और इंडिया का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है. बिफोर इट वॉज बिल्ट पीपल हैड टू रिलाई ऑन फेरीज फॉर ट्रैवल. अब जब तक ये नहीं बना था तो लोग फेरी का वेट करते थे, फेरी आएगी और वो लोगों को लेके जाएगी, विच डिड नॉट वर्क ड्यूरिंग फ्लड. लेकिन अगर तूफान आ जाता है या फ्लड हो जाती है तो उससे नहीं जा पाते थे. सो नाउ द ब्रिज, अब जो ब्रिज है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है ईयर राउंड ट्रैवल, वो पूरे साल उससे ट्रैवल कर सकते हैं. एंड हैज़ कट ट्रैवल टाइम बाय 4 आवर्स, और 4 घंटे का ट्रैवल टाइम भी कट हो गया. पहले उन्हें ज़्यादा टाइम लगता था, अब कम लगता है. फार्मर कैन टेक देयर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स द मार्केट बिफोर दे स्पॉइल. अब फार्मर जो हैं ईजिली अपनी सब्जियां और वेजिटेबल मार्केट में दे के आ सकते हैं उनके ख़राब होने से पहले. एंड पीपल कैन एक्सेस हॉस्पिटल एंड मेडिसिन फास्टर इवन ड्यूरिंग फ्लड. फ्लड के टाइम पर भी लोग ईजिली जो हैं हॉस्पिटल और अपनी मेडिसिन लेके आ सकते हैं और हॉस्पिटल में जा सकते हैं. अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल क्लोजर टू नेचर इज मेघालयज लिविंग रूट ब्रिज. तो मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज जो अभी हमने ऊपर पिक्चर देखी थी वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही, मतलब ये तो नेचर से भी क्लोज है. विच आर क्राफ्टेड बाय द इंडिजीनियस खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स. ये किसने बनाया, जो इंडिजीनियस खासी और जैंतिया ट्राइब्स हैं उन्होंने ये बनाया था. क्या करके, यूजिंग द रूट ऑफ फीकस एलेस्टिका ट्री, इस ट्री का यूज़ करके जिसे हम इंडियन रबर ट्री भी बोलते हैं.
दे गाइड द रूट अक्रॉस स्ट्रीम, उन्होंने जो है रूट्स को इस तरह से लगाया स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, बम्बू का यूज़ करके और पाम ट्रंक का यूज़ करके। और ओवर मैनी ईयर्स द रूट ग्रो स्ट्रोंगर, धीरे धीरे क्या हो गया, रूट उसी डायरेक्शन में जाने लगी और बहुत स्ट्रोंग हो गई। ट्विस्टिंग इनटू नेचुरल ब्रिज, और वो एक दूसरे में ऐसे ट्विस्ट होने लगी, एक दूसरे से मिलने लगी, और वो क्या हो गई, बहुत ही नेचुरल ब्रिज उन्होंने वहाँ पर बना दिया। सम टेक डिकेड्स और इवन सेंचुरीज टू मैच्योर एंड कैन लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब इनको जो है ये नहीं कि जल्दी पूरे हो जाते, डेकेड्स लगते हैं, 10-20 साल ऐसे लगते हैं, लेकिन ये जो है इतने मैच्योर हो जाते हैं, सेंचुरीज तक भी इजीली, मतलब 100-200 साल तक आराम से चलेंगे, क्योंकि प्लांट है, प्लांट की रूट तब तक ग्रो होती रहेगी या बढ़ती रहेगी, और जब तक कि उसे पानी और सब चीज़ें सही से मिल रही है, तो प्लांट तो हमेशा ही रहते हैं, तो इस तरह से उनकी रूट्स भी ऐसे ही रहेंगी। स्टैंडिंग 15 to 30 मीटर हाई, और इतनी हाइट पे होते हैं। दीज ब्रिज आर नॉट जस्ट पाथवे, ये सिर्फ जाने जाने का रास्ता नहीं है, बट लिविंग एंड ग्रोइंग स्ट्रक्चर विच हैव बीन न्यूचर्ड बाय ओवर जनरेशन। तो ये जो है एक लिविंग, वहाँ पे रहना और उसके साथ ग्रो करना, नेचर के साथ ग्रो करना, जो जो जनरेशन से चलता आ रहा है। दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नॉलेज, ये वहाँ के लोगों की नॉलेज है, लोकल पीपल की, जो उन्हें नेचर से रिलेटेड है, तो ये उसका एक रिफ्लेक्शन है कि उन्हें उसके बारे में कितनी नॉलेज है। दिस ब्रीजेज हैव अ कल्चरल मीनिंग, इनका जो है कल्चरल मीनिंग भी होता है। इसका एक मीनिंग है कि एक जनरेशन को दूसरे से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है इंडियन रेलवे नेटवर्क। सो इसको हम करेंगे कल, आज हम करेंगे यहीं तक। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।